Hello students, how are you? Here are some numericals based on chemical kinetics. These are some numericals which are asked already in the CBSE. So how can you solve these questions? I am just going to explain what data is given. You have to focus on the concept related to the topic. First of all, you should know what is the data given, and then what concept related with the given data we can apply, or what formula we can apply according to the given data. Then it would be easier to find out the numericals. Okay, so dear students, just focus. This is the question. For an elementary reaction, it is given that the rate of the appearance, appearance, rate of the appearance of SO3 at time t is this one. Calculate its rate constant, and what is the rate of disappearance of the reaction. Okay, reaction is given 2SO2O2 and 2SO3. बेटा आपने पढ़ रखा है कि अगर हमें किसी रिएक्शन का रिएक्शन गिवन हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है. विद रिस्पेक्ट टू SO2 इट इज -1/2 डेल्टा SO2 ओवर डेल्टा टी, और -1/1 डेल्टा O2 ओवर डेल्टा टी, और इट इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा SO3 ओवर डेल्टा टी. ये सभी वैल्यूज बराबर होंगे. ठीक है, अब हमें जो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 गिवन है. SO3 का अपीयरेंस, दिस इज द अपीयरेंस ऑफ SO3. यू नीड टू फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन. सो फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन आपको SO3 ओवर डेल्टा टी गिवन है. दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस. अगर उसमें आप 1/2 से डिवाइड कर दो, देन यू गेट द रेट ऑफ द रिएक्शन. ओके, so what is the rate of the reaction? You have to find out rate of the reaction equal to 1/2 delta SO3 over delta T. It is given 1.3 into 10⁻⁴ it is given. So solve this. 0.625 into 10⁻⁴ is the rate of this reaction. Now rate of disappearance of O2. This is the disappearance of O2. Okay, so rate of disappearance of O2 is also equal to rate of the reaction, because this is equal to this one. So rate of, ये आपको डिटेल में मैंने डिस्कस करे हुए हैं. Rate of disappearance of O2 is also equal to same, but with the minus sign. Rate of disappearance of O2 is equal to rate of the reaction. हाँ, अगर हमसे कहा जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 बताइए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 में फिर ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू निकालनी है. इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है. दैट मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2. सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3. दिस विल गिव यू रेट ऑफ disappearance of SO2 also according to the concept. समझ गए? Now how can you solve this question? This is what, calculate the overall order of reaction, which is the rate expression. If rate expression is given, then there is no problem to find out the order. This reaction rate, this reaction is order of half with respect to A. This reaction has order of 3/2 with respect to B. Overall order, it's a sum of the stoichiometric coefficient. In the first case, order of reaction is 2. In the second case, order of reaction is 3/2 minus 1. It is 1/2. However, individually, this reaction has order with respect to A 3/2, with respect to B is the -1. Okay, solve हो जाएगा बेटा. Similarly, question number 3 is what? ये 1 था, ये 2 था, 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू A एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B. सो व्हाट शुड बी द रेट एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन, के A की पावर 1 एंड B की पावर 2. ठीक है, इसके बाद हमसे कहा गया how is the rate of reaction affected when concentration of B alone is increased to
3 टाइम्स। अगर आप इस रेट के अकॉर्डिंग B की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दोगे देन इट इज द पावर ऑफ 2। सो अगर सिर्फ B की कंसंट्रेशन 3 टाइम होती है देन डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 9 टाइम, क्योंकि A की कंसंट्रेशन सेम रखी है, 3 टाइम्स होगी तो 3 टाइम्स क्या 9 टाइम्स हो जाएंगे। सेकंड केस, कंसंट्रेशन ऑफ A एज वेल एज B इज डबल्ड। अब इस रेट के हिसाब से देखिए, अगर आप A को डबल कर देते हो और B को भी डबल कर देते हो, A को डबल करोगे तो 2 टाइम्स क्योंकि पावर 1 है, और B को डबल करोगे तो स्क्वायर है, तो डबल का स्क्वायर 4 एंड 4 into 2। इन द सेकंड केस इट बिकम्स 8 टाइम्स। इसका सोल्यूशन इस पे बेस्ड था। Okay, now how can you solve this question? See it here. The decomposition of ammonia on platinum surface is given, is zero order, K की value भी given है. What is the rate of production of N2 and S2? Rate of production means rate of formation of N2 and rate of formation of S2. तो देखो जरा इस क्वेश्चन को, ये आप नोट कर लेना 3 क्वेश्चंस। 4th क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए इस रिएक्शन के लिए 2 ऑफ अमोनिया इक्वल टू N2 प्लस 3S2। इसके लिए बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डू यू नो, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है, दैट इज dx ओवर dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। सो रेट कांस्टेंट इज गिवन फॉर द क्वेश्चन। बेसिकली रेट ऑफ द रिएक्शन हमें मिल गया। फिर जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर। यही रेट ऑफ द रिएक्शन है, यही रेट कांस्टेंट है। नाउ बाय द इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 डेल्टा NH3 ओवर डेल्टा T। इट शुड बी इक्वल टू प्लस डेल्टा N2 ओवर डेल्टा T, should be equal to plus 1/3 delta S2 over delta T, and rate of reaction is given, it is 2.5 into 10⁻⁴. You have to find out the production of N2 and S2. Production of N2 and S2 का मतलब है rate of formation of N2, rate of formation of S2. What is the rate of formation of N2? That is delta N2 over delta T. You have to find out. Now this becomes equal to this one and this equal to this one. So इसका आंसर तो डायरेक्टली इसके बराबर हो गया 2.5 into 10⁻⁴. What is the rate of formation of S2? If you have to find out rate of formation of S2, formation production एक ही बात है, rate of formation of H2, अगर आप S2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हो दैट इज इट इज डेल्टा S2 ओवर डेल्टा T। ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है। अगर आपने इतनी वैल्यू निकालनी है तो इस 3 को इधर इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो इट गिव्स 2.5 into 3 into 10⁻⁴. इट विल गिव यू 7.5 into 10⁻⁴. ओके, दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2। ऐसे सॉल्व करना था इन क्वेश्चंस को। 5th क्वेश्चन अगर हम देखें, ये आपने अब तक इधर देख लिए होंगे। ये 5th क्वेश्चन जो है ये भी पास्ट ईयर प्रॉब्लम है CBSE बोर्ड का। इन्होंने दिया है K फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमेशा ध्यान देना, अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बराबर होते हैं हमेशा। इट इज 0.0030 moles per liter per second it is given. ठीक है, how long will it take for the initial concentration of A to fall from A नॉट की वैल्यू दी है आपको 0.10, AT की वैल्यू दी है 0.075 मोलर। टाइम निकालना है, ठीक है। फॉर रिएक्शन रेट वी नो रेट इक्वल टू K, ये ऐसे कर लीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए dx over dt is equal to K 1 over T A naught minus AT. This expression we derived already for zero order reaction. Now put the values
A naught is given, AT is given, T you have to find out, K is also given. हो जाएगा easily. So what is the T? A naught is 0.10, it is 0.075. And what is the value of K? It is 0.0030. Now solve this, you get these number of seconds. Clear? तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ठीक है ना. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि आप इनकी ऑर्डर फाइंड आउट करो या ऑर्डर से रिलेटेड कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो. अब मैं आपको एक और टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें हमें टेबल दी होती है और टेबल के बेसिस पर फिर हमने क्वेश्चन करना होता है. जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6. This type of question is asked in CBSE 2017. ठीक है. Table based question is this. Table is given. You have to given first of all a reaction 2A plus B equal to C plus D. For this reaction, data is given. Experiments given basically. Experiment 1. The concentration of A, concentration of B is given and the rate of the reaction is also given. ठीक है. Rate of the reaction is given. First experiment we take, concentration of A is 0.1, concentration of B is 0.1, rate of the reaction is 6 into 10 to the power minus 3 in the standard unit, moles per liter per second. In the second experiment, concentration of A is given 0.3, concentration of B is given 0.2 and rate of the reaction is given 7.2 into 10 to the power minus 2. ठीक है. थर्ड एक्सपेरिमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज गिवन 0.3, मोलरिटीज में ये दी होंगे. कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन 0.4. If we take A and B these, the rate of the reaction is 0.2B, 2.88 into 10 to the power minus 1. And in the fourth experiment, its concentration is given 0.4, it is given 0.1 and it is given 2.4 into 10 to the power minus 2. This is the part of the question. Remember this thing. It's a part of the question. It is given. Now you have to find out in this question. First one, what is order of reaction? ठीक है. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है order of reaction with respect to A and B find करो. Find rate constant, find rate expression, ठीक है. ये तीन चीजें निकालनी. बेटा आप क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, जब कभी आपको कहा जाए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना. कंसीडर जनरल रेट इक्वेशन. सपोज रेट इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा. इसको कंसीडर कर लो. नाउ पुट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. वी गेट रेट 6 into 10 to the power minus 3. के ए की वैल्यू 0.1 की पावर अल्फा, बी की वैल्यू 0.1 की पावर बीटा. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. फ्रॉम सेकंड एक्सपेरिमेंट अगेन यू गेट 7.2 into 10 to the power minus 2 इक्वल टू के 0.3 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा. From third experiment, put the values. You get 2.88 10 to the power minus 1 equal to k, 0.3 की पावर अल्फा, 0.4 की पावर बीटा. These alpha and beta are the order of reaction with respect to A and B respectively. मैंने एक जनरल इक्वेशन कंसीडर करके इन सभी एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यूज को इनमें पुट कर दिया. From fourth experiment, I get 2.4 into 10 to the power minus 2 equal to k,
0.4 की पावर अल्फा एंड 0.1 की पावर बीटा। ये बेटा मुझे वैल्यूज मिल गई इनकी, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं करना, दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स। वी हैव 4 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स, अल्फा बीटा एंड के वी हैव टू फाइंड आउट, बट वी हैव 4 इक्वेशंस, नो इशू। इन मैथमेटिक्स यू स्टडीड ऑलरेडी टू फाइंड आउट द 3 वेरिएबल्स, ठीक है। At least we have to given 3 equations. Here are 4, no problem. But now, based on your practice, how can you solve these equations? So देखिए, अगर मुझे इनको solve करना है, मैं इन सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को लूंगा और डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन डिवाइड कर दूं, then what we get? 7.2 10 to the -2, 2.88 इंटू 10 to the -1 इक्वल टू, देखिए के कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बच्चा 1/2 की पावर बीटा। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 1/4 है, ये 1/2 की पावर बीटा है। फ्रॉम हियर यू गेट बीटा इक्वल टू 2। यहां से आपको बीटा की वैल्यू 2 मिल गई सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से। सिमिलरली कोई और इक्वेशंस ले लो, फर्स्ट एंड फिफ्थ ले लो। फर्स्ट में फिफ्थ से डिवाइड कर दो, फर्स्ट एंड इट्स अ फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ ले लीजिए, इट बिकम्स 1/4, के कैंसिल हो गया, बीटा वाला पावर कैंसिल हो गया, अब रह गया अल्फा, ये रह गया 1/4 की पावर अल्फा, ठीक है। बाय दिस इक्वेशन वी गेट अल्फा इक्वल टू 1, वी गेट अल्फा 1 एंड बीटा 2। इफ अल्फा 1 and beta 2 we get, then what is the order of overall reaction? We get 1 plus 2, that is it is third order. Order ये हो गया। What is the rate expression? Rate expression becomes dx over dt equal to k a की power 1 and b की power 2. Now what is the rate constant? अब आपने अल्फा और बीटा दोनों निकाल लिए ना, इन अल्फा और बीटा को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। Suppose in the first equation we put it, we can find out the value of k also. Alpha is 1, beta is 2. अगर आप यहाँ पुट करते हो, then from here you get k is equal to 6 into 10 to the -3 divided by, it is 0.1 and it is 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, it is 6, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। बट ऐसे क्वेश्चंस 3 मार्क्स तक में आ सकते हैं। रिएक्शन इज गिवन, experimental values are given, we have to find out the order of reaction with respect to reactants, rate constant। आपने कुछ नहीं करना, इन एक्सपेरिमेंट्स को एक जनरल रेट इक्वेशन कंसीडर करके वैल्यूज पुट करके इक्वेशंस बना लेनी है, देन अकॉर्डिंगली इनको डिवाइड करके सॉल्व करके अल्फा बीटा फाइंड कर लेना है। अल्फा बीटा की वैल्यू जो आएगी उसको यहाँ पुट कर देना है, रेट इक्वेशन मिल जाएगी, इसमें पुट कर दोगे के की वैल्यू आ जाएगी, के इज द रेट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं, ठीक है। इसको मैंने फोकस करा है कि आपको बुक में अगर आप सर्च आउट करोगे तो कोई आपको इस पर एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेने, समझ गए। नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनमें मोस्टली ये इक्वेशन लगता है, k इक्वल टू 2.30/t log a0 over a0 minus x, या फिर हाफ लाइफ से रिलेटेड 0.6932/k, ठीक है, या फिर एवरेज लाइफ से रिलेटेड 1/k, ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। समझ गए। जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर रहा हूं, देख लीजिए। Suppose NCERT question is given, a first order reaction is found out the rate constant। NCERT का क्वेश्चन है, first order reaction has rate constant, it is given 5.5 into 10 to the -14 NCERT है, ठीक है। What is its half life? No problem at all. This is the formula. Half life is equal to 0.6932 divided by k. It is 5.5 10 to the -14 and unit of k is given in the second inverse,
So its answer is in second. You can solve it if solved out, otherwise you can put as it is. Okay. Another question related to the first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी आए हैं, मैं पहले वो क्वेश्चन फोकस कर दूं आप, ठीक है. क्वेश्चन इज गिवन अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ऑर्डर गिवन होगा फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन takes 40 minutes. A first order decomposition reaction, it takes 40 minutes for 30% completion. What is its half-life? Question is this. इन्होंने कहा कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 30% डिकम्पोज हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है 40 मिनट में, 40 मिनट्स में. हमने इसकी हाफ लाइफ निकालनी है. ऑब्वियसली आप पहली वाली कंडीशन से रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए. कैसे? वी नो के इक्वल टू 2.303 by t log a naught over a naught minus x. For the first order we know this relation. Time is given 40 minutes. 30% completion का मीनिंग है if we take a naught 100 then x should be 30. इसका मीनिंग ये है, ठीक है, कि अगर आपने a naught की वैल्यू 100 दी है तो इसका मीनिंग है कि 30% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है. ओके. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम हियर. 2.303 by 40 log 100 over 100 minus 30. यहाँ से आपको k आ गया. अब देखिए k की जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होती जल्दी कभी. किसी भी रिएक्शन के लिए वैल्यू ऑफ k फिक्स होती है अगर उसका टेम्परेचर फिक्स्ड हो, तो k की वैल्यू फिक्स्ड है. नाउ व्हाट इज द हाफ लाइफ? हाफ लाइफ क्या होती है? दिस इज द हाफ लाइफ 0.6932 by k. यहाँ से k को सॉल्व करके बस इसमें पुट कर देना है. यहाँ पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम आएगी. इट इज 100 over 70. सॉल्व करोगे तो 10 by 7 log 7 शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन. वो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व हो जाएगा. लॉग के रिगार्डिंग या कैलकुलेशन के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना. एग्जाम में जो लॉग या कैलकुलेशंस आती हैं बहुत सिंपल आती है, और अगर कोई लॉग बेस्ड क्वेश्चन है तो लॉग की वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है. मे बी इन सम केसेस लाइक log 1 is 0, log 2 is 0.3010, log 3 is 0.4717, log 10 is 1, log 100 is 2, log 1000 is 3. These are the some general log values. अगर आपको याद है तो ये हेल्प कर देंगे आपको. अदरवाइज डोंट वरी, इन मोस्ट ऑफ केसेस वैल्यूज ऑफ द लॉग शुड बी गिवन, ठीक है. So these are some problems based on this one. Calculations are very simple. You have just tried the questions. More and more questions you can try based on the formulas. And if you have any problem or doubts, then you can send me and you can solve it. In the next video lecture, I will send some other numericals based on the topics or based on the NCERT or based on the previous year questions. Okay, so watch it, enjoy it. Thank you. Thanks a lot.